Namaste, Ashish ji. After this long break, very nice to see you. Same here. It's been a while. Yeah, it's been a while. और आज का जो टॉपिक है हम सोच रहे थे कि कुछ भी नेविगेट लाइफ को नेविगेट करने के लिए मोटे मोटे तौर पे दो तरीके हैं। एक तो फॉलोइंग योर हार्ट फीलिंग, गट फीलिंग कहते हैं हम उसको, एंड द सेकंड इज बीइंग प्रैग्मेटिक एंड बीइंग लॉजिकल। तो क्योंकि बहुत कहा जाता है कि अच्छा दिल के पीछे लगोगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट, सो हम एज वी आर यंगर तो शायद वी आर मोर हार्ट ओरिएंटेड मोस्ट ऑफ अस, बट एज वी गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ तो ज्यादा वो कहते हैं ना कि दिल कठोर हो गया तो हम ज्यादा लॉजिक की तरफ जाने लगते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने सवालों के जरिए कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब Sure, sure. That's very interesting topic. And बी इट और प्रोफेशनल लाइफ के मुझे प्रोफेशन क्या चूज करना है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया बट आई वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो वो देख के लगता था कि अच्छा ये करके आर्ट्स पढ़ के क्या ही करोगे, या ये करके इसमें तो कुछ है नहीं क्या ही करोगे, इंजीनियरिंग करो फटाफट से नौकरी मिलेगी। फ्रॉम दैट टू इवन रिलेशनशिप्स, किसी को सॉरी बोलना, हम सोचते हैं अरे मैंने सॉरी बोल दिया तो उसको तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। सो आई थिंक इन ऑल द फैसेट्स ऑफ लाइफ वो हमेशा एक रहता है बिटवीन लॉजिक एंड द हार्ट। तो विल यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दिस? sure. So पहले फर्स्ट जो तरीका है समझने का वो तरीका यही है कि ये दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। पहले हमारे माइंड में अगर थॉट आती है तो एवरी थॉट वांट्स टू क्रिएट अ फीलिंग। एनी थॉट दैट कम्स इन आवर माइंड would like to create a feeling. Once the feeling is generated, we start the experience. Once generated, it starts the experience. Okay. So experience is feeling Mhm. and thought is thinking. Okay. So whenever we are thinking and doing logical steps, for example, mathematics. Ji. Maths is very logical. You can think, you can solve, you can Predict. yeah, you can follow the formula, you can follow the logic. It's a very thinking. Whereas when it comes to creativity, it's a very feeling oriented. But then once the product produced by the feeling, an art, that is duplicated, like Mona Lisa was created once, but that has now been duplicated as Ji. business, right? That requires thinking. Mhm. Now, if we are only a thinking person, we become sort of less creative. Mhm. And if we are a very emotional person, we are all creative without really looking from a transaction point of view. How will I sell this? Logically, how this will work. So these becomes two different worlds. One is a mental world and the other one is emotional world. Now people who are emotional, we all are emotional, we all make decisions with emotions. But people who are emotional tend to not be very clear about the outcome. They just do it. Mhm. People who are very mental or thinking level, they are very focused on the outcome. They are very clear about the outcome. Not necessarily they enjoy it, but they are very focused on the goal. Like I recently, Elon Musk was asked, like, how do you motivate yourself for the goal? He said, sorry, I didn't understand your question. He said, how do you motivate yourself to achieve goal? He said, sorry, I don't understand your question. I have a goal, I need to achieve it. What is motivation has to do with it? Mhm. So that's a very mental thinking, thought level goal that you go and achieve it. Whereas the emotional person will say, I need passion,
I need more feelings. I need more enjoyment while I'm pursuing my goal. So Okay. often the emotional person tends to not see the outcome. हाँ, तो यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि इज इट दैट व्हेन यू नीड दैट मोटिवेशन देन वो आप काम करना ही नहीं चाहते, यू वुड डू वट एवर, यू विल फाइंड अ वे ऑफ डूइंग वट एवर यू रियली वांट टू डू? क्या ये सच है या उसमें भी लाइक इट्स नॉट ट्रू? अगर कोई काम करना है और आपके पास कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जिसमें कि आपके अंदर रेजिस्टेंस है उस काम को लेके, थॉटफुल पर्सन वो काम कर लेगा। वेयर इमोशनल पर्सन थोड़ा उसमें स्टक हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है मेरे अंदर, मैं इसकी वजह से नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है या मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो वो इमोशन चाहेगा टू परस्यू। थॉटफुल पर्सन उस चीज में मोर डिपेंडेबल होगा, एग्जीक्यूट कर देगा। वेयर इज इमोशनल पर्सन विल बी स्लाइटली अनरिलायबल, क्योंकि वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, उसके मूड के ऊपर होगा, इमोशंस के ऊपर होगा, उसकी फीलिंग्स के ऊपर होगा। तो आप देखोगे ज्यादातर ईस्ट और वेस्ट में काफी फर्क है कि वेस्ट में जो बोला जाता है वो अक्सर डिलीवर किया जाता है वैसे, वेयर ईस्ट में काफी बार जो बोला जाता है और जो डिलीवर होता है उसमें अक्सर गैप होता है, बिकॉज बीच में फीलिंग्स आ जाती है। तो आपको सिर्फ थॉट नहीं मैनेज करना, आपको फीलिंग भी मैनेज करनी है। लेकिन अगर आपने फीलिंग मैनेज कर ली तो आपकी रिक्वायर्ड आउटकम आपको मिल जाएगी। वेस्ट में आपको सिर्फ थिंकिंग मैनेज करनी है और आउटकम मिल जाएगी आपको। So is it a social difference कि that's a learned behavior कि यहाँ पे we are more emotional and we are driven more by emotion and they are driven more by thinking? तो इसका डीपर ये है रीजन कि जो इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटीज होती हैं उनमें थिंकिंग ज्यादा डेवलप होती है, और जो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटीज होती हैं उनमें इमोशंस ज्यादा इमोशनल डेवलप होते हैं। तो जो भी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी होगी वो इमोशनल होगी, क्योंकि उसकी वजह से ही कम्युनिटी बिल्ड होती है। अगर आपको कनेक्शन बनाने हैं, रिलेशनशिप बनानी है, तो आपको इमोशंस चाहिए। थिंकिंग इज वेरी ट्रांजैक्शनल विच मेक्स यू इंडिविजुअल। थिंकिंग लेवल पे आप कनेक्ट नहीं करते हो, आप कनेक्ट इमोशनल लेवल पे करते हो। So so how to have that right balance, probably balance भी, और कहाँ पे मैंने क्या यूज करना है? दैट्स गुड क्वेश्चन। सी, टू रियलाइज पहले कि ये दो अलग अलग वर्ल्ड्स। नाउ आपके थॉट ने आपके अंदर फीलिंग जब जनरेट की, तो एक बहुत मिनिस्क्यूल सेकंड का आपके पास टाइम होता है जिस कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो जब आपके नेक्स्ट किसी ने आपको बात बोली और आपकी फीलिंग अब जनरेट हो रही है टू रिएक्ट, बिटवीन थिंकिंग एंड दैट रिएक्शन एक बहुत मिनिस्क्यूल सेकंड का टाइम होता है। एज यू बिकम मोर अवेयर, यू बिकम वेरी अवेयर ऑफ दैट पॉइंट जिसमें आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे फीलिंग जनरेट करनी है इसकी। अगर आप उस पॉइंट को धीरे धीरे वॉच करने लगो तो वो बढ़ने लगता है। तो जैसे किसी ने कोई बात बोली और आपका भी रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया, उसने कुछ बोला आपको ये रिएक्शन हो गया। बट बीच में एक बहुत, अभी अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे पता लगने लगता है, वो एक बहुत छोटा सा एक पॉइंट होता है जब आप डिसाइड करते हो कि नाउ दिस थॉट बिकम्स फीलिंग। तो इसीलिए जो ऐसा नहीं कि जो सेंट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आता है या उन्हें गुस्सा नहीं आता है, बट वो पॉइंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब कोई कुछ किसी ने कुछ बोला तो उस आपने एकदम से उस पॉइंट पे डिसाइड कर लिया कि मैं इस पे रिएक्ट नहीं करूंगी फॉर एग्जाम्पल, या मेरा रिएक्शन इस पॉइंट पे ये होगा। आप खुद करके देखना, आपको किसी ने कोई बात बोली
आप बिफोर एकदम स्टार्ट होने से, आप मिलने से पहले ही अपने आप को पहले ट्रेन कर लो कि कुछ भी बोले मेरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज हम्म, नंबर वन। दूसरा, जब स्टार्ट हो कॉन्वर्सेशन, तो जैसे ही वो ट्रिगर आए उस पॉइंट पे आप अपने आप को रोक लो, उसी पॉइंट पे फीलिंग नहीं जनरेट होने दो, और कहो कि हाँ, आई हैव डिसाइडेड कि आई विल नॉट बी अफेक्टेड, आई हैव डिसाइडेड आई विल बी इम्पर्टरेबल, आई हैव डिसाइडेड। तो वो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपका डिसीजन होल्ड करेगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप देखने लगोगे कि जैसे ही कोई आया या किसी किसी से मिलना है, उससे पहले आपने कुछ अपने माइंड में इंटेंशन सेट करी, वाइल द मीटिंग इज गोइंग अप आपने इंटेंशन सेट करी, और बाद में एक इंटेंशन सेट करी कि जो उसने बोला उसके ऊपर मान लो कोई फीलिंग जनरेट हो गई, उस फीलिंग में आई विल नॉट बी गेटिंग स्टक। इंडल्ज। तो इंडल्ज नहीं करना है मुझे। तो एज यू विल स्लोली वॉच द इंटेंशन, उससे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि ओके, आई एम द वन हु इज एक्चुअली अलाउइंग द थॉट टू जनरेट फीलिंग। तीन ही चीजें हैं मतलब, पहला आपने कुछ परसीव किया सेंसेस से, दूसरा थॉट जनरेट हो गई। थॉट तभी जनरेट होगी जब आपको वो चीज पसंद नहीं है। ओके। जब मतलब मैं थॉट तभी जनरेट होगी जब मुझे कुछ पसंद नहीं है, जैसे किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो थॉट जनरेट होगी। लेकिन अगर मुझे कोई फ्रेंडली या कोई लविंग थॉट कह रहा है, मतलब फीलिंग कुछ बोल रहा है, तो क्या कोई थॉट जनरेट नहीं होगी? जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल नेचर में हो, हम्म। बहुत सुंदर जगह पे है, आप ये थोड़ी कह रहे होते कि ये ट्री है, ये हाँ, माउंटेन है, ये। right? तो आप जब सिर्फ देख रहे होते हो, परसीव कर रहे होते हो, और एक फीलिंग लेवल पे आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो। थॉट तब जनरेट होती है, आप कभी भी मॉनिटर करना कि जो भी हो रहा है उसमें आपको कुछ अलग चाहिए। रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कह सकते हैं, डिजायर कह सकते हैं, अटैचमेंट कह सकते हैं, अवर्जन कह सकते हैं, कोई वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। आप खुद मॉनिटर करना अपने। आप ऑफिस गए और ऑफिस में किसी ने आपको ऐसे देखा कि गिव यू अ लुक, तो आपके इमीडिएटली थॉट जनरेट हो जाएगी। और अगर आपने आपने देखा कि बहुत सारा काम है, सो यू लुक्ड एट द फाइल, यू परसीव द फाइल, बट मे बी यू डोंट वांट टू डू, तो थॉट जनरेट हो जाएगी कि आई विश आई वाज समवेयर एल्स, आई विश आई कुड डू समथिंग एल्स। तो जो भी व्हाट इज है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट जनरेट्स थॉट। फिर उस थॉट की एसोसिएटेड फीलिंग होती है, अब चेंज करना है आपको, फ्यूल चाहिए, तो वो थॉट फ्यूल जनरेट करती है बाय फीलिंग। बट वो फीलिंग लेवल पे अगर बहुत एक्टिवेट हो जाए, तो आप एक्शन ले लेते हो विदाउट इवन थिंकिंग। अब बहुत लेट हो जाता है, फिर थिंकिंग के लिए अब जगह नहीं बची। तो इसीलिए आप देखोगे अक्सर कि बहुत सारी चीजों में मॉब, जब एक मॉब बनता है, कम्युनिटी बन जाती है, तो वो थिंकिंग बंद हो जाती है वहां पे। वहां पे एवरीथिंग बिकम्स अकॉर्डिंग टू द मॉब साइकोलॉजी। उसको पता है कि जो है वो गलत हो रहा है, बट वो मॉब फीलिंग्स इतनी ले चुका है मॉब, तो जो वो एक्शन लेता है वो विदाउट थिंकिंग हो जाता है। तो इसीलिए सत्संग एक बड़ा वर्ड संस्कृत में हिंदी में यूज किया गया है, सत्संग। उसका मतलब ये है कि कम्युनिटी में आप रहोगे तो वैसी ही आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी, एक्शंस जनरेट होंगे, तो साधना विल बिकम इजी। हाउएवर साधना इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, अकेली है, बट कम्युनिटी से आपको हेल्प होगी, क्योंकि वो फीलिंग्स जो होंगी, आपकी वाइब्रेशंस जो होंगी, और जो एक्शंस आप लोगे, वो आपको हेल्प करेगा। हाउएवर नोइंग, इन कोई भी चीजों से स्पिरिचुअलिटी पे कोई कनेक्शन नहीं है, बट जब तक आप दुनिया में हो, व्हाई नॉट हैव गुड वाइब्रेशंस। एंड मुझे लगता है कि जो समय चल रहा है,
the more predominant feelings are of fear, uncertainty, negativity. And there's behind that is a lot of thinking. And सोच सोच के कोई better तो feel करता नहीं है कभी, in my experience. We just complicate things because I feel with thinking we are just trying to feel secure. With a thinking mind, a restless mind, it just tries to go into different scenarios and it just tries to create a sense of safety कि अच्छा ऐसे हो जाएगा मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे हो जाएगा मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे हो जाएगा. But in reality जिंदगी में जो actually होता है वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं होता. So I feel most of the thinking, at least I indulge in, is very futile and unnecessary. But at the same time, I feel both thinking and feeling are tools. कि जहां पे मुझे सोचने की जरूरत है, मुझे कुछ वैसा काम करना है, that is the right thing to do. और जहां पे फील करना है, I feel हो उल्टा रहा है. जहां पे थिंक करना है वहां पे फील कर रहे हैं, जहां पे फील करना है वहां पे थिंक कर रहे हैं. You said it very beautifully, Puneet. Maybe you didn't realize it. You said when I indulge in the thinking, वही बस that is the answer. जब I घुस जाता है thinking में, तब problem start हो जाती है. As far as thinking is going on, वो तो automatically चल रही है. But the moment मेरी thinking ये है, तब problem start हो जाती है. तो जब आप ऑब्जर्व करो कि आपकी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग चल रही है, तो आपको ये लगेगा इस थिंकिंग को मुझे बदलना है या इस थिंकिंग से मुझे छूटना है. वो फिर एक और थिंकिंग जनरेट हो जाएगी क्योंकि अब रेजिस्टेंस है जो चल रहा है उसके अगेंस्ट. फिर थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, फिर लेयर्स ऑफ थिंकिंग चलने लगता है. अच्छा, थिंकिंग विदाउट रियलाइजिंग इज अ वेरी कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. वी डोंट रियलाइज इट, वी वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी इस चीज में. जब भी आप थिंक कर रहे हो तो आपकी काफी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. फिर आप अपनी फीलिंग्स को कंफ्यूजिंग फीलिंग्स भेज रहे हो. फीलिंग्स कंफ्यूज हो रही है और फीलिंग कह रही है कि मैं ऐसा फील नहीं करना चाहती, तो एक और थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि मैं तो ऐसा नहीं फील करना चाहती. ये फिर भी हो रहा है. फिर आपसे कुछ बात हो गई, आपके जो एक्शन ऑर्गन्स हैं उनसे कोई बात निकल गई, या हाथ से कोई बात हो गई, लेग्स से कुछ हो गया. फिर उसके अगेंस्ट कि ये भी नहीं होना चाहिए था, तो वो एक, तो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज क्रिएटिंग मोर थिंकिंग. नहीं, लेकिन ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जो थिंकिंग है वो इंडिपेंडेंट है. थिंकिंग से कुछ होता नहीं है. थॉट्स से कुछ हो सकता है, थिंकिंग से नहीं हो सकता. क्योंकि थिंकिंग इज जस्ट अपेरेंटली हैपनिंग. बट एक थॉट आप दोगे ना बॉडी में कंसिस्टेंटली, वो फिर फीलिंग जनरेट करने लगेगी. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लेट्स से कोई पर्सन पसंद आया, कोई समवन यू हैव लाइक्ड, तो आपने एक थॉट रख ली माइंड में कि आई लाइक दिस पर्सन. तो धीरे धीरे देखोगे आप कि थोड़े टाइम में एक एसोसिएटेड फीलिंग जनरेट होने लगी उस पर्सन से. और कॉन्स्टेंटली फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पर्सन का ख्याल भी अगर आया तो वो एसोसिएटेड फीलिंग आने लगी. फिर एक्शन ये हुआ कि आई वांट टू टॉक या आई वांट टू रीच आउट या जो भी है उस फीलिंग के हिसाब से. बट देन इनिशियल जो थॉट है ना, वो आप ही ने डाला है. फिर उसे नर्चर किया है. आपने कहा है कि वो पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है, या पर्सन इज वेरी गुड, उसमें ये क्वालिटीज हैं. नर्चर करते गए करते गए करते गए, फिर धीरे धीरे वो थॉट जो है फीलिंग में कन्वर्ट होगी. अब यही चीज थिंकिंग में होगी तो क्या होगा, वो थॉट आएगा, उसके एसोसिएटेड दूसरी थॉट आएगी, नहीं नहीं इतना भी अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इतना भी कैसे, तो वो थिंकिंग में आपस में लड़ती रहेगी थॉट्स. बट अगर आपने एक ही थॉट पकड़ लिया तो उसकी एसोसिएटेड फीलिंग आपके अंदर आ गई,
तो एसोसिएटेड एक्शंस होने लगे आपके पास। तो हिप्नोसिस में क्या करते हैं, एक हिप्नोसिस में एक थॉट पकड़ लेते हैं कि ये वाली थॉट आपकी इससे चेंज करेंगे। थिंकिंग नहीं चेंज करते वो लोग, थॉट चेंज करते हैं। थॉट चेंज हो गई तो एसोसिएटेड फीलिंग आने लगी, फीलिंग आने लगी तो आपके एसोसिएटेड एक्शंस होने लगे। आई थिंक दिस इज व्हाट वी इवन डू इन योग निद्रा, क्योंकि हम एक संकल्प लेते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रैक्टिस वी रिपीट इट in a different state. अच्छा। Uh, and I've never looked at it like this, thinking versus one thought. But this does make a lot of sense because thinking does not have a direction. It keeps going. Usually, I mean, I'm not talking about some sort of कि पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ creative thinking कर रहे हैं, but mostly जो खुद से हो रहा होता है when we let it flow, most of it is unrequired and very time consuming. And that's why I feel, though it's not a very it's a kind of a dualistic concept. That's why till we reach another level, having an identity helps before we can drop it. It's like that association of जैसे किसी का victim mindset है, so that association of being a strong person, that thought does help. I mean, down the line when we are moving into non-dualistic, realm, I would say. So we drop that identity also. But till a certain level, I think it does help having that identity. तो दो चीजें हैं उसमें। एक चीज हो गई कि मतलब बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि जो सफरिंग है वो आइडेंटिटी की सफरिंग है और कुछ नहीं है। जब तक आपके पास कोई भी आइडेंटिटी रहेगी तो आपके पास सफरिंग रहेगी एसोसिएटेड। ये दोनों एक ही साथ में इंटरलॉक्ड है, सॉर्ट ऑफ एक ही चीज है, मतलब इंटरलॉक्ड है। हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आई एम फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, तो मेरी एक आइडेंटिटी हो जाएगी साउथ ऑफ इंडिया की। आप कहो हो सकता है कि मैं नॉर्थ ऑफ इंडिया से हूँ, तो एक आइडेंटिटी हो जाएगी। अब जब हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, अगर मैं आइडेंटिटी होल्ड करता हूँ साउथ इंडिया की और आप आइडेंटिटी होल्ड करते हो नॉर्थ इंडिया की, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी टू डिफरेंट आइडेंटिटीज की, राइट? है नहीं आइडेंटिटी, मैं पूरा साउथ इंडिया नहीं हूँ, आप पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं है। सिमिलरली जब आप रिलीजियस आइडेंटिटी में बात करने लगते हो कि मैं ए रिलीजन से हूँ वर्सेस बी रिलीजन से हूँ, तो आप देखोगे कई एक सॉर्ट ऑफ गार्ड आपका बना ही रहेगा। सेंस ऑफ सेपरेशन जिसे बोलते हैं, सेंस ऑफ सेपरेशन आपका बना ही रहेगा कंसिस्टेंटली जब तक आप आइडेंटिटी होल्ड करोगे। आप पूरा नहीं ओपन हो पाओगे, क्योंकि पूरा होने के लिए आपकी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जानी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि सेम है, मतलब आई एम वी आर सेम, सिमिलर, वी आर सेम। तब आइडेंटिटी जो है वो थोड़े लूज हो जाती है, थोड़ी सी उसकी जो सेपरेशन है इतना स्ट्रॉन्ग वो कम होने लगता है। तब आप जब कनेक्ट करते हो पर्सन से तो वो डिफरेंट कनेक्शन होता है। तब आपको लगने लगता है कि वो पर्सन मैं ही हूं। आइडेंटिटी एक वर्चुअल क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम जगह पे बात की है। अष्टावक्र गीता में सबसे ज्यादा उसके बारे में बात की है, सांख्या योग में उसके मैसेजेस हैं गिवन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जाएगी उसी स्केल पे आपकी सफरिंग भी एसोसिएटेड बढ़ने लगेगी, फियर बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब आपको कुछ बचाना है। क्रिकेट क्रिकेट में मैच चल रहा है, सडनली वी पीपल बिकम वन कंट्री, द अदर पीपल बिकम अदर कंट्री। फिर वही मैच अगर इंटर स्टेट होगा तो देन दे बिकम डिफरेंट आइडेंटिटी। फिर वो डिफरेंट स्टेट में भी इंटर सिटी होगा जब, तो आपकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। तो आप तो वही हो बट आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो रही है। उसके चेंज से आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो टीम हार रही है तो दुख हो रहा है आपको, बट वो दूसरी टीम भी आप ही की स्टेट की है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली ये देखो कि आज व्हाट आइडेंटिटी आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम, इस चीज में मैं क्या आइडेंटिटी मेरी, मैं ये
आप एक आइडेंटिटी क्रिएट करोगे कि भाई मैं ये पर्सन हूँ, ये पास्ट है इस पर्सन का, ये एजुकेशन है, उस आइडेंटिटी से आज मैं ऑपरेट कर रही हूँ। आपके लिए वो काम कर रही है, ग्रेट। जैसा आपका क्वेश्चन है कि अगर वो आइडेंटिटी आपके लिए काम करे, बहुत अच्छी बात है। तो वो आप रोल करोगे एक्टर की तरह उस ओके। आइडेंटिटी। बट वो आइडेंटिटी नोइंग कि मैं हूं नहीं, क्योंकि जो आप ऑफिस में हो वो घर में नहीं हो आप। सेम आइडेंटिटी ही, बॉडी तो सेम है बट होनी भी आइडेंटिटी, नहीं चाहिए। हाँ, होने में नहीं चाहिए काफी। तो आपके लिए जो आइडेंटिटी जहां पे काम कर रही है, उस आइडेंटिटी को आप नर्चर करोगे। आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि मैं ये हूँ, बट है होता नहीं है ऐसा। कई कई बार होता है ना कि जैसे आर्मी में जो लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं ये रैंकिंग हूँ, बट जब वो हम्म रिटायर्ड होके बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। आई थिंक वन ऑफ द आई वाज रीडिंग वन स्टडी जिसमें one of the difficult part is when people leave army and come to civil life, हम्म that the identity is completely now gone। जो उनको वहां पे हम्म आइडेंटिटी अब नहीं है, अब नहीं है तो मतलब now you have to find a new identity। और हम्म। being flexible with identity is very 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 important। So that it can be, I think I like that when you said, when you use the word role. So using a conscious identity to create a role for the self and still not being like deeply attached with it. That okay, this is working for me. I'm playing the role of a parent, or I'm playing the role of a responsible person. You know, using it like a tool, and then even kind of discarding it when it's not working or when required, or changing to a different role और when required. जब भी आप फिक्सेट हो जाओगे Hmm. कि ये मेरी आइडेंटिटी है, दिस इज हु आई एम, that is where your suffering will start। It's very difficult to change because Hmm. identity तो बदलती रहती है, बॉडी ही बदलती रहती है, थॉट्स बदलती Hmm. रहती हैं, फीलिंग्स बदलती रहती हैं, बट फिक्सेट होना कि भाई उस टाइम पे ऐसा हुआ था, वैसा नहीं होना चाहिए था, Hmm. Hmm. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, तो वो फिक्सेशन सफरिंग है। अदरवाइज तो Hmm. लाइफ तो फ्लो हो रही है, आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी चलती रहेगी। Hmm. So, in fact, मुझे लगता है कि I see that in a few people also, that life जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं. There's not much resistance in them to whatever is happening. And then I see a few people where there's a lot of resistance to whatever happens, right? और finally जो life में होता है, that is always a surprise. हम कितना भी सोच लें, कितने भी seers, कितने ही fortune tellers के पास क्यों ना चले जाएं, जो एक्चुअली होता है वो that is beyond all those predictions, I feel. So would it be safe to say that identity can be used as a tool, like to play a role, but as long still the as idea. as long as you are using identity as a tool, Mhm, you will not have suffering। mhm, mhm. As long as the identity is using you, to that degree you will have suffering। So when is the identity using you? Is it that uh, whatever we don't consciously choose, that identity can tend to use me? जैसे Is फॉर it? एग्जाम्पल, मैंने, आपने कुछ काम किया, आपकी आइडेंटिटी है कि आई एम अ गुड वर्कर, Mhm, तो मैंने काम को रिजेक्ट कर दिया, आपकी आइडेंटिटी को लगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, mhm, तो सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट मैं आपके काम के बारे में बात कर रहा हूँ, mhm, आपके आइडेंटिटी से तो मेरी बात नहीं। बट कभी कभी जब आप किसी से झगड़ा होता है तो वो आपकी आइडेंटिटी को अटैक करता है, यू आर ऑलवेज लाइक दिस, hmm, तो आइडेंटिटी ट्रिगर हो जाती है। फिर आइडेंटिटी ट्रिगर हो जाती है तो फिर आपको कंट्रोल करती है कि हाउ कैन ही से समथिंग लाइक दिस टू मी। वो mhm, भी mhm, आइडेंटिटी ही कह रही है हाउ कैन दिस बी सेड टू, बट हमारी अवेयरनेस नहीं होती तो क्या होता है, वो आइडेंटिटी वो एसोसिएटेड फीलिंग्स जनरेट करके एक्शन करवा देती है। बट अगर आप ये देखोगे कि इस पर्सन के साथ मेरी ये आइडेंटिटी ट्रिगर हो रही है, और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट्स बेस्ड ऑन हु यू आर विद।
बेस्ड ऑन वेयर यू आर, दोनों चीजों में, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सन। क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो बिलीव्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो भी प्रोजेक्ट होंगी आपके ऊपर। तो आप यू बिकम समबडी एल्स व्हाइल यू आर विद दैट पर्सन। तो आइडेंटिटी इज वेरी कॉन्टेक्चुअल। बट फिक्सेट होना कि दैट पर्सन सेड दिस टू मी, उसमें फिक्सेट फिक्सेट हो जाना, वो सफरिंग हो जाता है। उसने बोल दिया, आपकी आइडेंटिटी ट्रिगर हो गई, आपकी आइडेंटिटी ने कुछ आपसे करवा दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। और अगर आइडेंटिटी नहीं है, आपको गाली भी पड़ रही है, अगर आपके पास आइडेंटिटी ही नहीं है, तो ओके। च्वांग त्से का एक बड़ा अच्छा वो है कि ही वेंट टू वन, एक टेंपल में, एक पैलेस में गया, तो किंग ने पूछा कि हु आर यू। ही सेड आई आल्सो डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन। उसने कहा मतलब आपने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ बातें की है, मतलब कुछ तो हो गए ना आप। उसने कहा अगर मैं कुछ भी होता हूं, तो मैं वो कुछ नहीं भी हो सकता हूँ। अगर आपके पास कोई टाइटल है, तो लिया भी जा सकता है। आप प्रेसिडेंट हो जाओ तो आप हटा जा सकते हो, आप सीईओ तो भी हटाया जा सकते हो। तो कुछ दिया आपको, तो लिया भी जा सकता है ना। और आइडेंटिटी को बड़े बड़े टाइटल्स चाहिए। आइडेंटिटी इज ऑलवेज टेकिंग थ्री थिंग्स: टाइटल, मनी एंड फेम। तो ये, बट ये तीनों चीजें ली जा सकती हैं आपसे। टाइटल भी लिया जा सकता है आपसे, आपको एक दिन दिया, एक दिन लिया जाएगा। मनी भी दिया, दे के लिया जा सकता है। फेम भी दे के लिया जा सकता है। आइडेंटिटी को तो ये तीनों चीजें चाहिए, इससे वो बूस्ट होती है। बट रियलाइज करना कि तीनों चीजों में आइडेंटिटी फंस जाएगी, तो मुझे जनता के सामने जाना, तो ये फेस रखना पड़ेगा। तो उसमें आप धीरे 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 कॉन्स्टेंटली फंसते चले जाते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आइडेंटिटी आपको पूरा यूज का पूरा करते हैं। कंट्रोल कर लेती है, और उसको फिर आप लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 मिनट के लिए सोचो, आपके पास ठीक है, लिविंग है, सब है, बट आपके पास फेम नहीं है, टाइटल नहीं है, और मनी नहीं है, तो फ्रीइंग नहीं होगा वो। वुड दैट नॉट बी अ फ्रीडम? आइडेंटिटी को नहीं समझ में आएगा वो, आपको समझ में हम्म। आएगा। तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझ में आएगा, बट आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाएगी। आइडेंटिटी लगेगा व्हाट द लाइफ का क्या पर्पस है, क्या करना है, बट वो तो उसके बियॉन्ड। तो आशीष जी, यहाँ पे एक सवाल आता है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में how is that to be navigated? Because I hear this very often, and sometimes I also face this. जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो लोगों में, हमें लग तो a part of us also starts feeling and a part also starts thinking, जैसे बुरा लग रहा है मुझे, रूडली बोला या ऐसे किया, एंड देन उसको हम नेविगेट करने की कोशिश करते हैं थिंकिंग से। हम कहते हैं अरे इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तो किया नहीं था, अब इसको रियलाइज होने। तो how to navigate that, because I feel there's a sense of identity there also, कि I'm a very self-righteous person or I'm deserving of respect, of care or love. So how to like navigate it, because it becomes, the more we think, the more confusing it becomes. पहला आपको And another way of handling it is कि अपना ego और अपनी feelings छोड़ दें हमने साइड में, and we are there, we at least we make a move, we talk. तो क्या किया जाना चाहिए इसमें? तो बाय माइंड का फंक्शन ये होता है कि जो पास्ट होता है, माइंड उसमें काफी ग्रीफ ढूंढता है, और जो फ्यूचर है उसमें फियर, हम्म। एंजाइटी, एंड हम्म। पास्ट में पेन। हम्म। अब आपको किसी ने कोई बात बोली, तो जो अच्छी बातें हैं वो ड्रॉप कर देगा माइंड, हम्म। हम्म। बट पेन याद रखेगा। हम्म। अब जो आइडेंटिटी है, वो भी, जो माइंड है, आइडेंटिटी एक ही चीज है।
मन और मैं का भाव। हम्म। जैसे हिंदी में बोला ना, मैं का भाव है। हम्म। तो आपके साथ किसी ने कुछ बोला, पास्ट में बोला, अभी तो नहीं बोल रहा, लेकिन वो माइंड की आदत है कि वो पेन याद रखता है, क्योंकि माइंड के हिसाब से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। किसी ने आपको कुछ बोला, आप वो नहीं बोल पाए जो आप बोलना चाहते थे। तो बाद में आप सोचते हो बार बार, हाँ। अगली बार मैं ऐसे बोलूंगी। तो वो अगली बार भी नहीं हो पाता, तो अगली बार कुछ वो और कुछ बोल देते हैं, फिर आप प्रोग्रामिंग करते रहते हो कि मैं ये बोलूंगी। अगली बार। हाँ। फिर अब हो क्या रहा है कि आप पास्ट की पेन को फ्यूचर में कैरी कर रहे हो, प्रेजेंट में कैरी कर रहे हो। तो इसका पहले अच्छा तरीका ये है कि आप कोई मेथड यूज करके क्लीन करो अपनी उस इंसिडेंट को। पहले उस इंसिडेंट को क्लीन करो और उस इंसिडेंट को ऐसे माइंड को प्ले करो कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। हम्म। हम्म। और धीरे धीरे ना माइंड इसको ड्रॉप कर देगा, वो ये पकड़ने लगेगा कि ये हुआ, हम्म। कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। कोई ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई तभी आपके पास पेन है ना। कुछ आपको नहीं मिला उस सिचुएशन में, तभी पेन है, सफरिंग है। हम्म। आपके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको जो चाहा था वो मिल गया, भूल गए आप। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो भूल गया। माइंड के हिसाब से ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई, क्योंकि थिंकिंग ट्रांजैक्शन में सोचती है। तो वो सोचती है कि अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये करूंगी। तो आप पहले ही माइंड में रिलीसिंग करके वैसे सिचुएशन क्रिएट कर लो कि ऐसा ये नहीं हुआ, एक्चुअली ये हुआ। तो क्या होगा कि माइंड धीरे धीरे वो ट्रांजैक्शन क्लोज कर देगा। और आपने कहा कि ये नहीं हुआ ये हुआ, सो इज इट काइंड ऑफ रीराइटिंग द स्टोरी विद अ हैप्पी हाँ, स्क्रिप्ट? क्योंकि आप अगर देखो, अभी अपना पास्ट अगर आप सोचते हो, कोई इंसिडेंट अभी सोचो आप देखोगे कि आप अपने आप को भी देख पा रहे हो उस इंसिडेंट में। वो कैसे पॉसिबल है कि आप अपने आप, आपके कोई कैमरा तो लगा नहीं है। तो आपने रीराइट की स्टोरी उस इंसिडेंट की, अपने आप को रख के वहां पे एक रीइनिशिएशन क्रिएट किया आपने उस स्टोरी की, ये हुआ। आप बेटर री कर दो ना क्रिएशन, कि ये नहीं ये In हुआ। fact, in fact, I was reading this. They said that imagining an apology is more powerful than a real apology. So the mind is so powerful, हमारा अपना मन, the creative power we have, the power of imagination. कि उसको imagine करके कि अच्छा उसने मुझे apologize कर दिया. That works much better according to psychologists than someone actually apologizing to me. क्योंकि देखो, जब वो अपोलोजाइज करने आएगा ना, तब भी आपके साथ ऐसे होगा कि पूरा नहीं झुका, थोड़ा सा तो रह गया, अभी भी गुरूर तो है उसमें, अभी भी उसने मेरे को एक थोड़ा लुक तो दिया, यू नो। ये सारा माइंड जो होगा ना, वो क्योंकि पेन को पकड़े रहना चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो आपको शुरू में माइंड की हेल्प करनी है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं कहा गया, एक्चुअली ये कहा गया। Oh, that's like, being kind to ourselves. क्योंकि I think सबसे ज्यादा हम खुद को डराते हैं। लेकिन why are we addicted to that pain? हम वो ढूंढते क्यों है कि मुझे सबसे, अगर 10 चीजें अच्छी हुई हैं, दो दो अच्छी नहीं हुई, तो 12 में से मैं, मेरा दिमाग और थिंकिंग वो दो पे ही जाएगा rather than the 10 things which worked for me. क्योंकि थिंकिंग, पुनीत का जो काम है ना थिंकिंग का, वो ट्रांजैक्शन है। कि मान लो मैंने आपको ये पेन दिया, ठीक है, इसके बदले में आपने मुझे पैसे दिए। तो अगर मैंने आपको पेन दे दिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो मेरे उसमें अकाउंट ओपन हो गया। अब ये क्लोज नहीं होगा जब तक, तब तक ये चलता रहेगा, टिक करता रहेगा। ये ये जो थिंकिंग है वो ट्रांजैक्शनल थिंकिंग है। एक तरीका होगा, कई लोग कहते हैं कि हम, मैं तो गिविंग हूँ, मैं तो सबको देता ही रहता हूँ। Exactly, that's an identity too. हाँ। और उसमें ये बोलना कि मैं गिविंग हूँ, ऑल्सो सफरिंग आ जाती है। कोई ये बोले कि गिविंग इज ओनली हैपनिंग, तब सफरिंग नहीं आएगी, तब आप नहीं करना। लेकिन मैं गिविंग हूँ, इससे सफरिंग बाहर से ही आएगी ना, अंदर से तो नहीं आएगी। अगर मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी गिविंग हूँ, मैं गिविंग हूँ, तो maybe someone comes up and says, oh, Ray, you are very mean, you only know how to take and not give.
will that cause pain or it can happen without that also? जैसे मैं गिविंग हूँ, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं रिसीव भी करना चाहता हूँ। Hmm. ट्रांजैक्शन थिंकिंग लेवल पे यही ट्रांजैक्शन होगी ना। मान लीजिए आपने किसी का भला किया, आपने इसलिए भला किया क्योंकि आपको अच्छा लगता है भला करना, ट्रांजैक्शन हो गई Hmm. ना। Hmm. आपने भला कर दिया, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, जीरो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप इम्परटर्बेबल हो, राइट। तो भला करना नहीं करना बात एक ही हो जाएगी, राइट। मैथमेटिकली ट्रांजैक्शन तो फिर, तो जो गोल है वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन लेस स्टेट, जैसे हम कहते हैं नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी को समझ लो एक ट्रांजैक्शन है कि ये दूंगी तो ये मिलेगा, ये करूंगी तो ये मिलेगा। Hmm. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म Hmm. में ध्यान लगाओ, फल की इच्छा मत करो। जब ट्रांजैक्शन नहीं होगी तब आपको नॉन ड्युअलिटी समझ में आएगी। Hmm. उसको एक्चुअली कहना चाहिए नॉन ट्रांजैक्शनल, Non-transactional, yeah. जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, Hmm. फीलिंग भी नहीं मिलती आपको। Hmm. उस चीज को हम कहते हैं निर्वाणा, वी कैन कॉल इट, जैसे उसका है ना कि निर्वाणा शक्तम में है कि मैं ये भी नहीं हूं, 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 नेति नेति नेति। तो जो आप हो वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और तो कहीं जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा वो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम कह सकते हैं दैट द रियल एडिक्शन इज टू transaction transactional, like 100%। nature of life, the real addiction. May it be buying anything, may it be creating relationships. It's that कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, that is the real addiction, more than the वही chemicals we are. सफरिंग है, Yeah. क्योंकि आपने कुछ किया और आपको नहीं मिली रिकग्निशन, तो सफरिंग है। पर आपको मिला और नहीं मिला, आई थिंक वो हम लोग बात करते हैं ना हुटलेस स्टेट, जी जी जी। अनअफेक्टेड रहे। तो मिलने पे भी आप अनअफेक्टेड हो, आप नहीं मिलने पे भी अनअफेक्टेड हो, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। एंड the takeaway from today's conversation uh, for me has been कि when you talked about that point of return, that between something happening and me reacting, being aware at that point and working from there, will that be a good like या assignment, good जैसे मैं takeaway? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो तुम, कि जैसे मान लो फॉर जी। एग्जांपल तुम ऑफिस में हो, हम्म। बॉस ने कुछ कहा और बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन यू विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया ये ऑफिस है, ये मेरे बॉस हैं, यहाँ पे आई विल नॉट रिएक्ट। तो आप देखोगे गुस्सा जो है वो आएगा और चला जाएगा। बट वही हम्म। चीज आपके घर में किसी ने कह दी, We take, the people we feel safe with, we can take them for granted. और हुआ क्या, फर्क क्या है, आपने वहां डिसाइड किया कि नहीं करूंगी, यहाँ डिसाइड किया ये करूंगी, बस। और एक चीज और, जब आप पहले भी बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में जो आई वो ये है कि एक तो होता है कि मुझे अंदर रिएक्शन हो रहा है और मैं बाहर नहीं निकाल रही, आई एम सप्रेसिंग माय एंगर, एंड द अदर वन इज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ रिटर्न आई एम डिसाइड कि मुझे नहीं करना गुस्सा। अब बाहर का शायद लोगों का तो सिमिलर एक्सपीरियंस होगा कि चाहे अंदर गुस्सा उबल रहा है या शांति है, बाहर तो मैंने नहीं कहा कुछ, बट माय ओन एक्सपीरियंस विल चेंज। That sense of empowerment, I'll feel that sense of freedom from trans that the whole transaction game will make me feel very calm. और बड़े अच्छे एक इसका छोटा सा उदाहरण है कि तुम्हें मिठाई खाने से मतलब है, Hmm. या जो मिठाई बनाने वाला है उससे। Right, right, right. I get you मिठाई there. खाओ ना, जो खा सकते हो तो खाओ, क्यों मिठाई वाले के Hmm. पीछे पड़ी हो, या मैं पड़ा हूँ। Okay. My grandfather used to tell me this
कि किसी से भी कोई अच्छी चीज मिलती है, बुरी चीज मिलती है, आप उसको यूज करो फॉर योर ग्रोथ। हमारे साथ होता क्या है, हम मिठाई वाले के पीछे भागने लगते हैं कि तूने मुझे ऐसा डोज खिलाया, तुमने मुझे ऐसा क्यों। तो उससे तो ग्रोथ नहीं होगी ना। ग्रोथ तो उसने जो फूड दिया आपको, अच्छा दिया है खराब दिया, आपकी ग्रोथ के लिए यूज करो उसे। कि कैसे मैं अब ये आया तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं ये वाला मेरे को मिठाई मिली, ये अच्छी नहीं लगती मुझे, बट मैं इसमें ये वाला रिएक्शन लाना चाहती हूँ, मैं ऐसे इसको ऑपरेट करूंगी। तो वो करो ना, rather देन कि भाई जो जो बेचारा दे रहा है उसके पीछे पड़ जाना। Okay, and as usual, very empowering conversation. Thank you so much. Any parting words? आई थिंक इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी इंसिडेंट्स हों आपकी लाइफ, जी जी। उसकी जो कहानी आप लिख रहे हो बाय डिफॉल्ट, गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ बेटर स्टोरी, क्लोजिंग द ट्रांजैक्शन स्टोरी। आप देखोगे जी। कि इसका इमीडिएटली इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा। और आपको जैसे नींद नहीं आती तो क्या है, वो ट्रांजैक्शंस क्लोज नहीं हुई है, पेंडिंग है, क्लोज करो है। कोशिश करो कि मेडिटेशन में भी आप उसे क्लोज करो कि ये हो गया है। तो ब्यूटीफुल पार्ट, अगर आप कोई गोल के लिए भी करते हो तो गोल को ऐसे करो, गोल अचीव हो गया है। ओके ओके, नॉट के करना है, हो गया है। हाँ, क्योंकि हो गया है में वो जल्दी आपका मैनिफेस्ट होने लगेगा। नहीं तो हम कहते हैं कि हो जाएगा तब मैं, कैसे होगा, पहले हो ही आप जाए। वहीं से स्टार्ट करो फीलिंग कि आपका हो गया है। बट फॉर मी दिस रीराइटिंग द स्टोरी मैंने बहुत बार सुना था, बिकॉज इन इवन इन साइकोलॉजी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड दिस, बट how you spoke about it today, it made a lot of sense. So thank you so much. Thank you so much. Pleasure always, Puneet. See you next time. See you next time. Thank you.